which is performing circular motion like this. This is the center, and suppose this particle goes from position A to position B. Okay, we can call A as initial position and B as final position. Okay? Here R will be the radius of this circle. This is A to B curve line distance. That is what? Distance. Curve line. Okay? And this is S. Okay? Then this blue line represents what? Displacement. This blue line represents displacement. Okay? Then we got certain formula for distance and displacement. So first of all, for distance, what we have written, this angle traced by this particle is theta. So this is distance S is equals to R into theta. Okay? And second, displacement. How do you calculate displacement? Okay, and that is delta R is equals to 2R into sine theta by 2. Okay? So this is distance and displacement. Then the next term, that is linear velocity. Or before that, we have angular displacement. And that angular displacement theta. Okay? And from this formula you can calculate that is S is equals to R into theta. Therefore theta is equals to S divided by R. So this is what? Angular displacement. Now, suppose this particle completes one circle. Then the distance, what I am saying distance, I am not saying displacement. The distance traveled by the particle will be equal to what? Circumference. If particle completes one circle, the distance S, okay, this distance S will be equal to what? This distance S will be equals to what? Circumference. And you know, circumference of circle is equals to what? 2 pi r. Therefore, your theta will become what? S. Now this S, that is circumference, and that is 2 pi r. So therefore, this is 2 pi r upon r. And so it becomes what? 2 pi. And you know this. Right? Means if this particle completes one complete circle, then the angular displacement will be equals to 2 pi. This total angle is 2 pi. Okay, we can calculate from this. So this is about angular displacement.
Then the next term that we are going to see is fourth, that is linear velocity. Okay. Now this linear velocity, so you know its direction is along tangent. So this will be the direction of linear velocity. Like this. Okay, or at this point, this is B. Okay. So linear velocity, that is B. Okay, and its direction is along tangent. Then this V, okay, will be related to another term, that is what? This is linear velocity, we will have angular velocity. So this V will be related to angular velocity. This is linear velocity, that also we have seen yesterday. So this linear velocity is denoted by V, and another term, that is what? Fifth term, that is angular velocity. Okay, and it is denoted by omega. So you can define linear velocity as what? It is rate of change of displacement with respect to time. This linear velocity is rate of change of linear displacement with respect to time. So angular velocity, how will you define angular velocity? That is, it is rate of change of angular displacement with respect to time. And you know that the rate of change, दोस्तों तो अपन कशाने indicate करतो? So to indicate the rate of change, we use what? Derivative. ठीक है? So if I want to write this angular velocity, so how will you write that? In terms of derivative. How will you write that? Okay, so it is rate of change of angular displacement. So omega can be written as rate of change. So that is what? d theta by dt. Okay. So rate of change of angular displacement, right? Theta is angular displacement. So rate of change of angular displacement with respect to time. Okay, t is time here. So omega is equals to d theta by dt. See, we have also classified this linear velocity into two types. That is average velocity and instantaneous velocity. Similarly, angular velocity can also classified into two terms, that is average angular velocity and instantaneous angular velocity. So average angular velocity, right? Average angular velocity. Okay, this can be written as what? We can write this as
delta omega. Okay, of course this will be a vector quantity, and so we can write this as delta theta upon delta t. Okay, delta means what? Change in displacement. Delta, this delta. Okay, this delta indicates change or difference. So change in angular displacement with respect to change in time, that gives you what? Average angular velocity. Okay, and if you put limit, then it will be called as what? Instantaneous angular velocity. Instantaneous angular velocity. Okay, तो इसको कैसा लिखेंगे हम? That is ओमेगा. ओके, सिर्फ ओमेगा लिखा होगा तो वो क्या होगा? That will be instantaneous angular velocity. जब डेल्टा ओमेगा लिखा होगा, that will be what? That will be, जब डेल्टा ओमेगा लिखा होगा, then that will be average. और सिर्फ ओमेगा लिखा होगा, then it will be instantaneous. It will be what? Instantaneous. So how will you write that? That is limit delta t tends to 0. Okay, and this is delta theta upon delta t, and that is written as what? D theta by dt. Okay, so this term, that is when we write derivative, जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो क्या होगा? Instantaneous angular velocity. That will be what? Instantaneous angular velocity. ठीक है? Okay, so these are the terms related to angular velocity. ठीक है? Then see, this is important point and very important point. For UCM, that is uniform circular motion. So in UCM, what we have? The linear velocity. Which one? Linear velocity has constant magnitude. But linear velocity has constant magnitude, but the direction changes at every point. The direction changes at every point. So, if I want to calculate what? Change in velocity. Okay, that will be the next term. Change in velocity. So, sixth term, that is change in velocity. Change in velocity. Okay, that what I want to calculate? Delta V. Delta V. Okay, first of all, देखो अब यहां पे अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, राइट? वेलोसिटी चेंज नहीं होती. देन यू कैन से, तो आप ये कहेंगे कि हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी तो हमेशा 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, राइट? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? There is a change in direction. There is a change in direction. Now if there is a change in direction, so due to change in direction, what? Due to change in direction, there will be change in velocity. There will be change in velocity because velocity is what? Vector quantity. So if there is a change in direction, there will be change in velocity. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा तो भी हम उसमें क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं. देखो मैग्नीट्यूड चेंज होने, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता,
यहाँ पे लिखता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज। ओके, किसके लिए? यूसीएम के लिए। तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी उसको हम निकालेंगे। तो देखो ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, ठीक है। ओके, ये इसका सेंटर है। देखो इसको वेक्टर के this is important in terms of vector. Okay, how will you understand in terms of vector? जैसे कि मैंने आपको बताया था वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये कोई पोजीशन है, ओके, जहां पे इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड, दैट इज व्हाट? अपवर्ड। ओके, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी v1, दिस इज वेलोसिटी v1। ओके, कुछ टाइम t के बाद ये पार्टिकल यहां पे गया, ये, ठीक है। देखो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये v1 कितना है? लेट्स से दिस v1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। यहां पे देखो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है v2, इसको मैं वेक्टर लिखता हूं। यहां पे भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ। अब डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो देखो इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, ये वेक्टर, ठीक है, राइट। ये है हमारा v1 वेक्टर, ये है v1 वेक्टर, ठीक है, और ये है v2 वेक्टर। इसको मैं यहां पे लाता हूं ऐसा, ठीक है। दिस इज v2 वेक्टर, ये क्या हुआ? v2 वेक्टर। देखो मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ये जैसा था इसको मैंने यहां पे लिखा, ये जैसा था मैंने इसको यहां पे लिखा, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना क्या है? ये वाला। देखो इसको डायरेक्शन भी हमें समझना है, मुझे कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। ये तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये लाइक दिस। तो ये होगा डेल्टा v, और इसको बोलेंगे हम v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको निकालना है, तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया, क्या लिखा? दैट इज डेल्टा v is equals to what? v2 माइनस v1, या इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज v2 वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, ठीक है। तो ये निगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में, इसमें लिखा वेक्टर फॉर्म में। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दैट इज अगेन बाय लॉज ऑफ वेक्टर, दैट इज r इज इक्वल्स, और r क्या होता है? यू नो
that is p square plus q square plus 2pq cos theta, 2pq cos theta। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, कैसे आएगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये दो लाइन मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो ये आएगा क्या, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 एंड cos थीटा, cos थीटा। या अब देखो एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगल कितना है, थीटा। किसके बीच है, V1 और V2 के बीच एंगल कितना है, थीटा। अब लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे क्या चाहिए, माइनस V1। तो माइनस V1 कहां से आएगा, माइनस V1 कहां से आएगा? So we have seen the concept of negative vector. We have seen concept of negative vector. तो ये अगर V1 है, ये क्या है, V1, तो V1 का नेगेटिव वेक्टर, व्हाट, V1 का नेगेटिव वेक्टर। तो V1 का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब जितना V1 है उतना ही, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा, लाइक दिस, ये, ठीक है। और ये होगा क्या, ये V1 है तो ये होगा माइनस V1, ये होगा माइनस V1। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ, अपोजिट, ये लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, अब इसका V2 और माइनस V1, V2 एंड माइनस V1, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, या ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी यूज पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे हमें क्या चाहिए, V2, ये V2 रेड एंड ये माइनस V1 ब्लैक। अब इन दोनों में एंगल कितना होगा, तो ये एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा, अब ये एंगल कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल, ये अगर थीटा है ये, ठीक है, तो ये कितना होगा, दिस इज 180 माइनस थीटा, कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसलिए जब यहां पे मुझे एंगल लेना है, किसके बीच लेना है, V2 एंड माइनस V1, किसके बीच लेना है, V2 एंड माइनस V1, ठीक है। तो V2 और माइनस V1 के बीच जो एंगल होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं इसको कितना, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल आएगा दैट इज 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं फिर से, तो यू नो दैट, तो ये होगा V1 का स्क्वायर प्लस ये होगा V2 का स्क्वायर प्लस, अब ये cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज माइनस cos थीटा। सो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखेंगे तो दिस इज, ये क्या हो जाएगा, twice V1 V2 एंड दिस इज माइनस cos थीटा। तो सिंपली इसको फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस में क्या होगा, माइनस 2V1 V2 cos थीटा, ओके। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, कौन सा, कोई किसके लिए डिस्कस कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 is equals to magnitude of V2, let's say equals to V, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको लिखा मैंने V, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डेल्टा V कितना आएगा, डेल्टा V कितना आएगा, तो ये आएगा कितना, सो अंडर रूट ऑफ ये होगा V का स्क्वायर, ये भी होगा V का स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा ट्वाइस V into V, that is again V का स्क्वायर, and this is cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे होगा माइनस साइन, ओके। हाँ, तो ये बन जाएगा क्या, दिस इज 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2V स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, और इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर, और ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, so 1 minus cos theta is equals to 2 sin square theta by 2, तो इसको अगर फिर से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो, तो ये 2 into 2 4, this is v square and this is sin square theta by 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, ओके, तो ये आएगा 2v sin square और 2v sin थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला। अब ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला हमने किसके लिए डिराइव किया है, दैट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी वेलोसिटी चेंज होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 2v sin थीटा बाय 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, that is change in velocity in uniform circular motion is equals to, that is 2v, v is what, velocity at any instant, and that will be same at every point, okay, and that is equals to 2v sin theta by 2, okay, and theta by 2, theta is what, the angle। तो इसका एक दो इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, इलस्ट्रेशन तो यहाँ पे देखेंगे कि सपोज ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड, ओके, दिस इज नंबर 6, नंबर 7, टाइम पीरियड, देखो ये भी मैं डिफाइन करूंगा किसके लिए, यूसीएम के लिए। So time period for uniform circular motion. Okay, so what will be time period? Okay, it is very simple. That is time taken by the particle to complete one circle. Okay, time taken by particle to complete one circle. So time taken by particle to complete one circle, ठीक है, और one circular motion, ठीक है। अब इसको अगर डिफाइन करना है, सो टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ओके, यू नो डिस्टेंस इज velocity is equals to distance upon time, so time is equals to what, time is equals to distance upon velocity, so time will be equals to what, distance upon velocity, तो ये कितना आएगा, सो डिस्टेंस होगा 2 pi r, राइट, दैट इज द सर्कमफेरेंस। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
फॉर वन सर्कुलर मोशन, मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, मतलब ये पूरा सर्कल अगर ये कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r, और इसकी वेलोसिटी हमने ली है, कौन सी वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट v। ओके, और हमने एक रिलेशन देखा था, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको मुझे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, किसके, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में मैं अगर लिखता हूं इसको, तो यू नो दैट v is equals to r ओमेगा, v is equals to r ओमेगा। ये किसके बीच का रिलेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे अगर ये टाइम t कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आएगा, दिस इज 2 पाई r, ये तो डिस्टेंस हुआ, राइट, अपॉन v, और v क्या है, r ओमेगा। तो r ओमेगा यहां पे लिखता हूं, तो देखो ये r कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आया 2 पाई बाय ओमेगा, where omega is what, angular velocity, omega is what, angular velocity, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से और एक एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो यहां से क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन t। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इसको मैंने यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे लिया, तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हुआ टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट टर्म दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, या फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब that is how many revolutions, okay, or how many rotations will be completed in 1 second, how many revolutions will be completed in 1 second. This frequency will be denoted as n, okay, n that is number, so number of revolutions completed in 1 second, number of revolutions, number of revolutions completed in 1 second time, 1 second time। तो 1 सेकेंड में, मतलब यहाँ पे टाइम लिया मैंने 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। So number of revolutions completed in 1 second, that is called as frequency, ठीक है। अब इसका एक सिंपल रिलेशन मुझे लिखना है इसके साथ, टाइम पीरियड के साथ, फिर यहाँ पे आएंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n, what is n, that is number of revolutions completed in 1 second, ठीक है, number of revolutions completed in 1 second, that is called as frequency। जब मैं ये टाइम पीरियड कंसीडर करूंगा t, टाइम पीरियड कंसीडर करूंगा t, तो t टाइम में क्या, t टाइम में, तो देखो ये टाइम है, दिस इज टाइम, यहाँ पे है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस, n रिवॉल्यूशंस। अब मैंने टाइम अगर लिया t, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, दैट इज 1 सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हाट, 1 सर्कुलर मोशन। तो अगर, तो 1 सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो ये व्हाट इज दिस इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस,
ठीक है, और ये है टाइम। तो n रिवॉल्यूशन के लिए 1 सेकंड, तो n को हमने डिफाइन किया फ्रीक्वेंसी, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कैपिटल T। तो यहाँ पे अगर इसको लिखूंगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, n into t is equals to 1 into 1, okay, means n into t is equals to 1, or n is equals to 1 upon t, or t is equals to 1 upon n, t is equals to 1 upon n। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, they are what, they are reciprocal of each other, right? Simple relation, that is frequency and time period are reciprocal of each other। इसको भी समझते हैं कि अगर टाइम t होगा, that is equals to time period, तो number of revolutions equals to what, 1। तो टाइम पीरियड t में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, that is 1। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो ये मैंने एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिला था क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, और ये 1 अपॉन टी क्या है, याद रखो ये 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी क्या है, n, तो ये ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा क्या बन जाएगा, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 1 अपॉन टी एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, n। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 पाई n, 2 पाई n। ठीक है, तो ये देखो ये 2 पाई क्या है, दिस इज एंगल, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई क्या है, एंगल। तो ये जो टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, उसी को ध्यान में रखो, एंगुलर वेलोसिटी को ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, what we will call it as angular frequency। This is very important, angular frequency। So angular velocity और angular frequency दोनों सेम होते हैं, तो इसको डिनोट करूंगा ओमेगा से। So angular frequency and angular velocity are same। ठीक है, so this is angular frequency। Okay, so time period, angular frequency, angular frequency, okay, these are the different terms we have used here। Next is what, next next is what, kinematic equations, kinematic equations, kinematic equations for circular motion or rotational motion, kinematic equations for circular motion and rotational motion दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो kinematic equations, how we are going to use this kinematic equations, you know, so kinematic equations, तो पहले यहां पे मैं लिखूंगा लीनियर मोशन, जिसके लिए हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस लास्ट ईयर स्टडी किए, लीनियर मोशन, और यहां पे आएगा सर्कुलर और रोटेशनल, दोनों के लिए भी यूज होगा। अब इसमें जो टर्म्स होते हैं, तो ये तो आपको एनालॉजी पता है, यहां पे अगर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट करेंगे किससे, थीटा से। ठीक है, तो
तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड या तो होगा वेलोसिटी, कौन सी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये लीनियर टर्म, तो वेलोसिटी होगा v, तो यहां पे क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये होगा क्या, ओमेगा, ठीक है। और क्या यूज करेंगे हम, नेक्स्ट इज यहां पे यूज करते हैं हम एक्सेलरेशन, इसको यहां पे डिनोट करते हैं a से। यहां पे क्या होगा, सर्कुलर मोशन में ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे किससे, अल्फा, यूज है अल्फा, ठीक है। और क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। इनमें जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने लीनियर मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस स्टडी की है, ओके। सो देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशंस, लास्ट ईयर we have added one more equation that we will see here। तो यहां पे देखो दो पार्ट करता हूं मैं, तो यहां पे लिखूंगा लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन से लीनियर मोशन, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे आएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन से सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सबको पता है, राइट, दैट इज v is equals to u plus at, v is equals to u plus at। तो यहां पे आपको ये पता है v is what, velocity at time t, या इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, that is final velocity, okay, but more precisely v is what, velocity at time t, and this u is what, initial velocity, that is velocity at time t is equals to 0। तो ये initial velocity, ये velocity at time t, okay, very carefully you have to remember v is what, velocity at any time t। अब इसको इसमें कैसा लिखेंगे, तो यहां पे लिखूंगा ओमेगा 2 is equals to what, ओमेगा 1 प्लस अल्फा इनटू टी, अल्फा इनटू टी। तो ओमेगा 2 will be what, velocity at time t, which velocity, angular velocity, so angular velocity at time t, omega 1 will be initial angular velocity। तो यहां पे लिखता हूं मैं ओमेगा 2, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, या इसको बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यस, ओके। और ये होगा ओमेगा 1, मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, या इसको इनिशियल मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t is equals to 0, या इसको बोलेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, दैट इज s is equals to ut plus half at square, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो थीटा इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा सेकंड, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा 1 इनटू t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। Similarly, we will write third equation. Third equation is what, v square is equals to u square plus twice s। ये सभी टर्म्स तो आपको पता है, ये सभी टर्म्स आपको पता है।
तो यहां पे ये देखो, तो थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इनटू थीटा, अल्फा इनटू थीटा। तो ये बन गया थर्ड इक्वेशन, वेरी सिंपल। फोर्थ, that is what, displacement in nth second, what, displacement in nth second, so that is Sn, displacement in nth second, that is Sn। और इसको क्या लिखते हैं, yes, do you remember, okay, u plus a by 2 in bracket 2n minus 1, in bracket 2n minus 1, so n is what, that nth second, so u plus a by 2 in bracket 2n minus 1, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बनेगा, यस, ओके, इसको भी आप लिख सकते हैं व्हाट, थीटा n, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी, ओमेगा 1 प्लस अल्फा बाय 2 in bracket 2n minus 1, 2n minus 1, okay, this will be the, this is not the fourth kinematic equation, but we have derived it from this second kinematic equation, that is displacement in nth second। तो ये हो गए हमारे kinematic equations, ये हो गए हमारे kinematic equations। So this is all about the kinematics of circular motion or rotational motion।